So you need to take fx is equal to e to the power minus x minus cos x. Now and apply Rolle's theorem on it. Take any interval a to b. Take any interval a to b. X belonging to a b. So ये function continuous है. This is continuous plus this is differentiable. And here I guess f of a will be equal to f of b. ये भी रहेगा क्योंकि between any two roots. So हम already लेकर चलेंगे that a and b are roots of this function. और अब हमें शो करना है कि between a and b there is a root of this function. तो ऑब्वियसली f डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा. रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि फर्स्ट f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. सेकेंड, इफ f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. एंड इफ द वैल्यू ऑफ f इज सेम एट बोथ एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स पर f का वैल्यू सेम है, देन देयर एग्जिस्ट a point C, there exists a point C in between AB, C belonging to AB, such that f dash of C is equal to 0. F dash of C is equal to 0. ठीक है. So you do take care of it. कर लोगे, हो जाएगा ये. दिस क्वेश्चन इज रिपीटेडली आस्क्ड. रिपीटेडली ये पूछा गया है. एंड दिस इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फंक्शन दैट यू आर टेकिंग. यू कैन डायरेक्टली टेक दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन लोगे तो यहाँ तक वो लीड नहीं करेगी. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू मॉडिफाई दिस ए बिट. अब आपको लग रहा होगा कि क्या हम फंक्शन को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं. सी, दिस इज़ एन इक्वेशन. This is not a function, so I can rewrite it. I can rewrite it as cos x minus 1 is equal to 0. So if I take e to the power x common, so I can take it as e to the power minus x. So I can rewrite this equation. चलो, done it is. Now next question. ये analytic से है. This is also from analytic. Next question. A very very simple question. We are given that fxy is equal to mod x square minus y square. Find fxy at 0 0 and fyx at 0 0. fyx at 0 comma 0. अब कैलकुलस में, इन कैलकुलस आई हैव टोल्ड यू whenever the question of partial differentiation is asked, it means examiner want to test कि whether you have the knowledge of the limit or not. So I have told you कि fx क्या होता है. It is limit h approaching to 0 because the change is in x. change x में हो रहा है. f of x plus h minus f of x divided by h. This is the definition of fx. And the definition of fy I have told you कि y में change हो रहा है. So it will be fx as it is y plus k minus fxy divided by k. This was the whole definition. And एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि fxy क्या है. It is not fx with respect to y. This is wrong. fxy is basically fy with respect to x. fy with respect to x, because you will write it as del square f by del x del y, and which can be open as del f by del y. ठीक है. सो देख रहे हो, इट शुड बी एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ कैलकुलस में डिफर करेगा. इन दीज क्वेश्चंस दीज टू विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट. बाकी हर जगह इन पी डी ई इन एवरीवेयर एट एवरीवेयर दीज टू विल रिमेन द सेम. ये दोनों सेम ही रहेंगे. एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स. ओके, सॉल्यूशन देखो. सबसे पहले लेट्स फाइंड व्हाट इज एफ एक्स वाई एट 0 0. सो एज आई मैंशनड, इट इज़ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स.
एट 0 0. It means change x में हो रहा है and the function that is changing is y, fy. So I'll take limit h approaching to 0, fy 0 0 पर find करना है ना, we have to find the limit at 0 0. So I'll take 0 plus h comma 0 because the change is in x minus fy at 0 comma 0 divided by h. So this is equal to limit h approaching to 0, fy h comma 0 minus fy 0 comma 0 divided by h. So I need fy h comma 0 now. This is equal to limit change y में हो रहा है, so limit k approaching to 0. Change is in the function f. So f 0 comma 0 plus k h comma 0 plus k minus f h comma 0 divided by k. Okay, so this is equal to limit k approaching to 0, f h comma k minus f h comma 0 divided by k. Limit k approaching to 0, mod h square minus k square minus mod h square minus 0 divided by k. Now tell me, what will be the value of mod h square minus k square? अब यहाँ पर I have told you that modulus function takes two values. I mean mod x can be plus x or it can be minus x depending upon whether x is greater than 0 or x is less than 0. In the similar way इसको break किया जाएगा. If h square minus k square is greater than 0, तो ये as it is open होगा. Limit k approaching to 0, it is h square minus k square minus h square divided by k. So what will be my answer? It will be 0. Second, if h square minus k square is less than 0, तो ये open होगा. Limit k approaching to 0 as k square minus h square minus h square divided by k minus h square divided by k. ठीक है. अब यार इनको कुछ तो ऐसे देना चाहिए था. आई मीन इन दिस वे तो इट विल बी वेरी लेंदी. चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचिंग टू 0. बट एक चीज़ यहाँ पर ये नहीं है कि बिकॉज k इज अप्रोचिंग टू 0 सो k इज सर्टेनली स्मॉलर. बट स्टिल h also approaches to 0 ना. h also approaches to 0, तो वी कांट से कि k इज सर्टेनली स्मॉलर. तो हमें दो केसेस कंसिडर करने ही पड़ेंगे. बट दो केसेस में एक इशू है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है. अरे वाह, हो गया, डन इट इज़. दोनों में 0 ही आंसर आएगा. ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना. पुट k एज 0, तो ये नहीं, 0/0 कहाँ बन रही है. ये इनफाइनाइट बन रहा है बिकॉज इट विल बी, इफ़ आई पुट k एज 0 ना, सो इट विल बी -2h square by 0. सो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. सो डज नॉट एग्जिस्ट. वेरी सिंपल, डज नॉट एग्जिस्ट. ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. सो इट मीन्स आई ओनली हैव टू कंसिडर दिस केस. ठीक है, मुझे बस यही केस. तभी मैं सोचूं कि इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं दे सकता है वो कि हमें दो केसेस कंसिडर करने पड़े. सो वी गॉट 0. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ fy एट h0? इट इज़ 0. Now I need fy at 0, 0 as well. So this is limit k approaching to 0. Change y में हो रहा है.
फंक्शन एफ चेंज हो रहा है. सो एफ 0 कोमा के, पॉइंट क्या है 0 0 है, माइनस एफ 0 0 डिवाइड बाई के. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचिंग टू 0, एफ 0 कोमा के मीन्स 0 माइनस के स्क्वायर, minus f0 0 is 0 only divided by k. So here the answer that you will be getting is k square by k, which is certainly 0. तो ये दोनों ही 0 आ गई मेरे पास. fy h0 is also 0, fy 0 0 is also 0. अब हम पुट कर देंगे हमारा जो रिलेशन था fxy में. This was our fxy. So fxy is equal to limit h approaching to 0, this is 0, minus this is 0 divided by h. The result I am getting is 0. Okay, the result that I am getting is 0. Now I need fyx as well. fyx at 0 0. देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड है क्वेश्चन. fyx at 0 0. सो आई टोल्ड यू कि ये रिवर्स में होता है. इट मीन्स इट इज एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एट 0 0. सो लेट्स फर्स्ट अप्लाई द डेफिनेशन. वाई में चेंज हो रहा है के अप्रोचिंग टू 0. चेंज जो फंक्शन है वो एफ एक्स है. पॉइंट इज 0 0, सो 0 कोमा के. ठीक है. नाउ आई नीड टू इवेल्युएट एफ एक्स एट 0 कोमा के फर्स्ट. लिमिट चेंज एक्स में हो रहा है ना, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0. इट विल बी मोड एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर minus mod 0 minus k square and this. So here as well if h square minus k square is positive, limit h approaching to 0, तो ये लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी? ये एग्जिस्ट नहीं करेगी. डज नॉट एग्जिस्ट. बट इफ एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज लेस देन 0, तो उस केस में इट विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई एच, एंड इट विल बी 0. इट विल बी 0. So whenever it is a modulus function, now you have to break it. Even if that doesn't mean anything, but you have to break it. So I got fx at 0k. Now I need fx at 0 comma 0. H approaching to 0. And it will be 0 again. It will be 0 again. बस तो फिर अब पुट कर दो उसमें. पुट इट इन योर फॉर्मूला जहाँ पर हमने एफ वाई एक्स का फॉर्मूला लिखा था ना. सो इफ़ आई पुट इट हियर, लिमिट के अप्रोचिंग टू 0, बोथ द वैल्यूज आई एम गेटिंग एज 0. सो ये 0 आ रहा है. 0 इज़ द आंसर. नाउ फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व हियर. देखो जो एफ वाई एक्स था ना, एफ एक्स वाई सॉरी, एफ एक्स वाई वॉज एग्जिस्टिंग फॉर, इट वॉज एग्जिस्टिंग व्हेन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ये तब एग्जिस्ट कर रहा था. एंड इट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग व्हेन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वॉज लेस देन 0.
एंड सेम थिंग रिवर्स हो गई है एफ वाई एक्स में. इन एफ वाई एक्स when h square minus k square is positive, the limit does not exist. But when it is less than 0, the value is 0. So अगर वो चाहता तो ये चीज़ पूछ सकता था कि आर दीज टू इक्वल. सो ये दोनों इक्वल हैं बट फॉर डिफरेंट कंडीशन. फॉर डिफरेंट कंडीशन दीज टू आर इक्वल. डिफरेंट कंडीशंस है ना. अदरवाइज अगर हम सिर्फ एक कंडीशन लें कि एच स्क्वेयर अगर ग्रेटर देन के स्क्वेयर है, सो इस केस में मेरा जो एफ एक्स वाई है वो तो ज़ीरो है. बट इफ़ आई स्पीक अबाउट एफ वाई एक्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट. And if I consider the case when h square is less than k square, then for this case my fxy does not exist. Does not exist. But my fyx is equal to 0. So this was the observation here. बाकी formula based था. I mean it wasn't tough ना. You can't call it tough question. u is equal to x square plus y square. v is equal to x square minus y square. x is equal to r cos theta. y is equal to r sin theta. Find Jacobian uv with respect to r theta. uv with respect to r theta 2021. देखो u इज़ नॉट डायरेक्टली ए फंक्शन ऑफ आर थीटा. u पहले x का फंक्शन है, y का फंक्शन है. x एंड y आर फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा. v क्या है, पहले एक्स वाई का फंक्शन है और फिर x एंड y आर फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा. सो यू हैव टू अप्रोचेस हियर. पहला अप्रोच क्या है जो सब लोग कर सोचेंगे कि x को यहाँ पुट कर दो, y को यहाँ पुट कर दो. दिस इज़ लाइक वन अप्रोच एंड दिस इज़ नॉट बैड है ना. आई मीन दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. यू विल गेट द सेम मार्क्स. दूसरा अप्रोच जो मैंने आपको बताया है क्लास में है ना, कि मुझे जाना है यू वी से आर थीटा में. आई कैन नॉट डायरेक्टली गो. सो आई फर्स्ट गो टू एक्स एंड देन दिस विल गो टू आर थीटा. आई मीन Jacobian of uv with respect to r theta can be written as Jacobian uv with respect to xy, then xy with respect to r theta, and this is to be multiplied by -1 whole square. This is the formula in Jacobian है ना. This is the formula, we have discussed it in class. Rest is very simple. Jacobian uv with respect to xy क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y. So it is equal to -4xy minus 4xy. So it is like -8xy. -8xy. बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लास्ट में जो जैकोबियन होगा वो आर एंड थीटा का ही रहेगा. ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा निकाल लो. इज इक्वल टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर इज कोस थीटा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज आर साइन थीटा, वाई विद रिस्पेक्ट टू आर इज साइन थीटा, वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज आर कॉस थीटा. सो इट इज इक्वल टू r cos square theta minus r sin square theta minus r sin square theta. Now put it in formula. So Jacobian uv with respect to r theta, -1 square is just 1, -8xy, r बाहर ले लेते हैं, cos square theta minus sin square theta, sin square theta. अब यहाँ मैं कह रही थी यू कांट जस्ट लीव इट लाइक दिस. एक्स वाई को भी चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज एक्स वाई इंटू आर थीटा. सो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो एक्स एज आर कोस थीटा एंड वाई एज आर साइन थीटा.
नाउ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर क्या थीटा क्या होता है? इट इज कोस 2 थीटा. So this is equal to minus 8 r cube cos theta sin theta into cos 2 theta. Now cos theta sin theta can be written as sin 2 theta by 2. Sin 2 theta by 2 into cos 2 theta. So it is minus 4 r cube. Again sin 2 theta cos 2 theta can be written as sin 4 theta by 2. So इसका आंसर आ जाएगा minus 2 r cube sin 4 theta. I mean this question was also very simple, directly formula based. Next question, same year. Two 2021. If 0 to x ft dt is equal to x plus 0 to 1 tft dt, then find value of f1. Then find value of f1. See, we need f1, but here the integration is given, and you know that integration is anti-derivative, है ना. तो याद हो मैंने आपको एक लेबिनिट्स रूल पढ़ाया था. आई हैव टोल्ड यू द लेबिनिट्स रूल. Leibniz rule. Not the frequent topic but at times asked. At times it is asked. Leibniz rule क्या कहता है कि whenever I have a function of x and y या x and t dt, the limit r of x, जो लिमिट है वो सम फंक्शन ऑफ एक्स सम फंक्शन ऑफ एक्स है ना. दिस इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा सबसे पहले पुट द अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ टी, पुट द अपर लिमिट. इंटीग्रेशन नहीं लेना है. पुट द अपर लिमिट एंड अपर लिमिट का डेरिवेटिव बी डैश एक्स. नाउ पुट द लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ टी एंड द डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट, then plus sign, integration as it is ax to bx, partial derivative with respect to x. किसका? अंदर वाले फंक्शन का. That's it. ये वैल्यू होती है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस. आई मीन इसके डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, एंटाई डेरिवेटिव की वैल्यू होती है ये. आई मीन अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँ इस तरह से बाय अप्लाइंग लेबिनिट्स रूल, तो इंटीग्रेशन विल गेट कैंसल्ड आउट. इंटीग्रेशन विल गेट कैंसल्ड आउट. तो इन क्वेश्चन में लेबिनिट्स रूल अप्लाई करना होता है. रिमेंबर एक देयर वाज दिस वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, देयर आई टोट यू दिस. ठीक है, चलो तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको निकाल लूँगी. आई मीन आई टेक यहाँ पर apply differentiation on both the sides. Apply differentiation on both the sides.
ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन बचेगा ना, दैट विल बी अवर एफ एक्स ओनली आफ्टर अप्लाइंग डिफ्रेंसिएशन ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स, क्योंकि टी सारा कैंसल आउट हो जाएगा एंड माई फंक्शन विल बी ऑफ एक्स ओनली। सो लेफ्ट हैंड साइड में तो एफ एक्स ही बचेगा आफ्टर अप्लाइंग डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू। नाउ राइट हैंड साइड, सबसे पहले x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? बेसिकली वी आर अप्लाइंग डिफ्रेंसिएशन ना, तो एवरीवेयर इट विल बी अप्लाइड। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 टी एफ टी डी टी, ये है मेरा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज जस्ट 1 प्लस हियर वी विल अप्लाई लेबिनिट्स रूल, इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पर। सो सबसे पहले तो अपर लिमिट को पुट करो यहाँ पर। सो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 इंटू एफ वन, बट द डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इज 0 बिकॉज 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस नाउ पुट द लोअर लिमिट, बट लोअर लिमिट 0 है तो 0 इंटू एफ 0 इंटू 0, तो ये भी 0 आ गया। देन माइनस साइन, माइनस साइन में अगर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? यार यहाँ पर x है, ये गड़बड़ है, नहीं तो ये सारा ही 0 आ जाएगा। हियर इट इज़ x, द लोअर लिमिट इज़ x, द लोअर लिमिट इज़ x, नहीं तो ये सारा ही 0 हो जाता। द लोअर लिमिट इज़ x एवरीवन। सो अब x पुट करेंगे यहाँ पर, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह पुट करना है, तो x एफ एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, देन प्लस साइन इंटीग्रेशन x टू 1। क्या आपको अंदर कोई x का फंक्शन दिख रहा है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है? नहीं ना। इफ़ आई वॉन्ट टू डू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो 0 हो जाएगा। सो द एंटायर विल बिकम 0। आई मीन हाउ सिंपल इट इज़। Just put the upper limit in place of t and the derivative of upper limit, minus put the lower limit in place of t then the derivative of lower limit, and then simply plus integration d by dx of del by del x of fx. Okay, so left hand side it is just fx, right hand side it is 1, ये तो 0 हो गया और ये minus x fx आ जाएगा, and this will also become 0. So if I take fx on one side, so what is fx? That is 1 by 1 plus x, 1 by 1 plus x. I need f1, so f1 is equal to 1 by 1 plus 1. The answer is 1 by 2. 1 by 2 is the answer here. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के एक दो क्वेश्चंस ले लो। आई मीन यू कैन डू इट फॉर होमवर्क, यू कैन ट्राई इट, प्रैक्टिस। लेट्स से 0 to t, 0 to x एफ टी डी टी, एक्स स्क्वायर प्लस let's say 1 to x x into t dt. Find f at 2. Solution.
देखो, we will apply Leibniz rule here. So left hand side में I'll be left out with just fx. Just fx is equal to derivative of this x square plus derivative of 1 to x into t dt, x into t dt. So what is derivative of x square? It is 2x plus, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इज़ 1 माइनस पुट द लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ टी एंड द डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इट इज़ 0 प्लस देन इंटीग्रेशन 1 to x. What is the partial derivative of this with respect to x? बेसिकली डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स टी क्या होगा? टी ओनली, सो इट इज़ टी डी टी. ये सिंपल है, दिस इज़ लाइक इंटेग्रेबल ईजली. सो ये आ गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इफ आई इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू टी ना, तो आई विल गेट टी स्क्वायर बाई 2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 1 to x. So that means my fx is equal to 2x plus x square plus 1 by 2 into x square minus 1. बस तो फिर now I need f at 2, मुझे f at 2 चाहिए. So f at 2 is equal to 4 plus 4 plus 1 by 2 into 4 minus 1. ठीक है, कर लोगे? This will be my answer. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे होमवर्क में, 0 to x एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस इंटीग्रेशन से x to x square t x to x square t इंटू जस्ट टी डी टी लिख लो, जस्ट टी डी टी लिख लो. ठीक है, कर लोगे ये आराम से. सो हियर थोड़ा सा प्रोसीड करवा देती हूँ. बाई लेबिनिट्स रूल अप्लाई डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड्स. So after applying differentiation, I mean d by dx of 0 to x ft dt. d by dx of x square t dt. So d by dx ये तो आ जाएगा fx हमारे पास. इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस इसका डेरिवेटिव लेबिनिट्स रूल से निकालेंगे. सो सबसे पहले अपर लिमिट पुट की एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इज़ 2x माइनस लोअर लिमिट पुट की डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इज़ 1 प्लस x to x स्क्वायर. व्हाट इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t? इट इज़ 0. So fx is equal to x plus 2x cube. So like this you can apply the Leibniz rule. ये कर लेना, फाइंड f of 2. Now the next question is same year 2021.
We have del x is equal to where alpha is a constant. Find limit x approaching to 0 del x by x. मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है. इट शुड बी डेल्टा डैश एक्स. सिग्नल को इसका ऑफिशियल पेपर निकालती हूँ मैं 2021 में. नहीं सही है. एक्चुअली द होल पॉइंट इज वी हैव टू इसमें ना the definition of differentiation and determinant, these two things will be used here. Limit x tends to अरे it's very simple in fact. देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो. इफ़ आई डायरेक्टली वॉन्ट टू फाइंड दिस लिमिट, अगर मैं डायरेक्टली ये लिमिट फाइंड करना चाहूँ तो आई नीड टू पुट एक्स एज ज़ीरो. तो अगर मैं एक्स को ज़ीरो पुट करती हूँ व्हाट आई गेट, बिकॉज सबसे पहला किसी के पास भी आई मीन द फर्स्ट अप्रोच दैट यू विल ट्राई इज डायरेक्ट अप्रोच. डायरेक्टली एक्स को ज़ीरो पुट कर दो. सो इट विल बी एफ एल्फ़ा, एफ टू एल्फ़ा, एफ थ्री एल्फ़ा, एफ एल्फ़ा, एफ टू एल्फ़ा, एफ थ्री एल्फ़ा, एफ डैश एल्फ़ा, एफ डैश टू एल्फ़ा, f dash 3 alpha. Now can you tell me what will be the value of this determinant? The value of this determinant will be 0. Two rows are same. First two rows are same. This will be 0. तो इसका मतलब it approaches to 0 as x approaches to 0. And नीचे भी 0 है, so it means it is basically 0 by 0 form. So limit x approaching to 0 delta x by x is a 0 by 0 form. So क्या करना चाहिए? L'Hopital. So इसका मतलब this is equal to limit x approaching to 0 delta dash x divided by 1. तो मुझे यहाँ पर delta dash x find करना है. Understood? I need delta dash x. अब डेल्टा डैश एक्स में आई नीड टू अप्लाई डेरिवेटिव एवरीवेयर, बट ये तो कांस्टेंट है. एफ एल्फा इज़ कांस्टेंट, एफ टू एल्फा इज़ कांस्टेंट, एफ थ्री एल्फा इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट. सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव हियर? ज़ीरो बन जाएगा, नहीं बनेगा. सो डेल्टा डैश एक्स डिटर्मिनेंट f dash x plus alpha, f dash x plus alpha, f dash x plus 2 alpha, f dash x plus 3 alpha,
एंड नीचे एफ डैश 2 अल्फ़ा, एफ डैश अल्फ़ा, एफ डैश 2 अल्फ़ा, एफ डैश 3 अल्फ़ा, देन एफ डबल डैश अल्फ़ा, एफ डबल डैश 2 अल्फ़ा, एफ डबल डैश 3 अल्फ़ा. बट अल्फ़ा इज़ ए कांस्टेंट, सो एफ अल्फ़ा भी तो कांस्टेंट होगा ना. सो ऑल दीज आर कांस्टेंट्स. So these will be, these two rows will become 0 0 0. These two rows will become 0 0 0. So whenever the determinant, whenever the matrix has entire row 0, its determinant will also be 0. So इसका मतलब limit x approaching to 0, delta x by x, which was equal to limit x approaching to 0, delta dash x by 1. Its answer is 0. Now moving on to the next question. Same year 2021, show that the area of asteroid, area of the asteroid x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3 is 3 by 8 pi a square. 3 by 8 pi a square. I don't know if we have done this question in class or not. Maybe मैंने इसलिए छोड़ दिया because PYQs में है ये. Always remember, asteroid is of this shape. ठीक है. So this is my visible region. This is my visible area. Okay. This is my visible area. And actually there are two x and y is equal to a to the power 2 by 3. This point is a0. This point is minus a0. This point is 0a. And this point is 0 comma minus a. 0 comma minus a. Whenever the question is based on asteroid, so you have to consider x as equal to r cos cube theta. Sorry, r cube cos cube theta. Y as equal to r cube sin cube theta. R cube sin cube theta. ठीक है. And the limit of r will be from a to the power 0 to a to the power 2 by 3. क्योंकि अगर हम इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो आई विल गेट, जैसे आर क्यूब कोस क्यूब थीटा पुट करो यहाँ पर, सो व्हाट आई विल गेट, यहाँ से आर स्क्वायर मिला, कोस स्क्वायर थीटा मिला, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is equal to a to the power 2 by 3. So it means r square is a to the power 2 by 3. So you know that the lower limit of r is always 0 because r represent radius and radius is nothing but the distance. तो यहाँ से r क्या आ गया, a to the power 1 by 3. So not 2 by 3, it should be 1 by 3.
r is from 0 to 1 by 3 and theta will be from 0 to 2 pi. Always remember these limits in case of these questions. यहाँ पर पावर अगर कुछ हो रहा है तो भी आप सेम सब्सटीट्यूशन आई मीन है, जैसे यहाँ मान लो 5/3 पावर होती तो अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाता. सो बस इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं ना. नाउ आई सिंपली नीड टू फाइंड डबल इंटेग्रल dx dy. बट बिकॉज आई हैव चेंज्ड एक्स एंड वाई इंटू आर एंड थीटा तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा डबल इंटेग्रल जेकॉबियन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा डी आर डी थीटा. You always remember it by changing substitution, by changing variables. We get this. So I need to find Jacobian first. Jacobian of xy with respect to r theta. That is equal to del x by del r, 3r square cos cube theta, del x by del theta. Now find this determinant 9r to the power 5 साइन 5 थीटा आएगा या 4 थीटा? 4 थीटा आएगा. So I got cos square theta sin square theta, and we can write it as ठीक है. So 9r to the power 5/4 sin square 2 theta can be written as 1 minus cos 4 theta. बस तो फिर अब सब्सटीट्यूट कर दो. सो डबल इंटेग्रल r इज़ फ्रॉम 0 to a to the power 1/3, theta is from 0 to 2 pi. कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अरे यार, यहाँ पर बाई 2 भी तो आएगा ना. एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 ये होता है ना. सो नीचे 8 आएगा. सो हियर इट शुड बी 8, हियर इट शुड बी 8. सो ये 8 होना चाहिए. सो हियर इट शुड बी 8. सो व्हाट आई गॉट 3 पाई बाई 8 ए स्क्वायर. यही आंसर है, 3 पाई बाई 8 ए स्क्वायर. So this is the area of the asteroid. चलो फिर, now 2021 is done.
एक क्वेश्चन और है जो कि बीटा गामा फंक्शन से है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बीटा गामा फंक्शन। तो बीटा गामा फंक्शन को पढ़ के फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्या ही पूछा है। अदरवाइज दैट इज़ ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई मीन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। आई हैव टोल्ड यू दैट बीटा गामा फंक्शन को वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता है, ओनली द बेसिक क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम बीटा गामा फंक्शन। एंड एक और चीज़,